it again after the session. Yes, yes, yeah. Yes. So the message in short of Dr. Gizre is that register for RM 7. Don't miss it. Okay. And I will directly start. I'll share my screen. There's a case to present. And this case is just a sample of what we will be doing in RM 7. So सोचो सैंपल अगर कड़क होएगा तो लोगों को लगेगा अरे 7 में क्या होने वाला है ना. दैट इज द होल मोटो टू instigate you to register because the speakers over here are really magnificent. डॉक्टर मिलिंद नाइक, डॉक्टर सारंग एंड डॉक्टर क्रिश, उनके केसेस बहुत ही गजब के होने वाले हैं. सो दिस इज जस्ट अ सैंपल. लिसन टू इट वेरी केयरफुली. ज्यादा टाइम नहीं लेना है. So this is the beginning of the case. You can see her attire. This is a case of PCOD. Okay. And I could not blur the videos. So please do not share anywhere outside. This is a request and I'm sorry I could not blur it. मैंने सिर्फ पेशेंट को देखा मास्क पहन के. Then I realized that अरे mother is not wearing the mask. तो उसके चक्कर में रह गया. In 8th standard, ना? दिन है shorts पहनने. And now she was wearing shorts and she's in just come in 8th standard. And that is pretty okay looking at our culture these days. है ना? थोड़ा सा आगे हाँ, थोड़ा सा आगे जाते हैं. You're tied up. And if you go to medical field, तो भूल जाओ. Compulsory चूड़ीदार, सलवार कमीज, you're tied up then. Good. Your name is Gauri. Yeah. थोड़ा सा आगे जाते हैं. And your mom? LIC 40 680. This is yours or mama's? Mama. Who else stays with your phone? Mom and dad. So be careful of everything. She shared the mobile number of her mother and who all stays at home. So father, mother and herself. You're the only one? Yeah. What does your father do? My father works at NABARD. And your mom? LIC. And what do you want to do? Not decided yet. In which board? ICSC. ICSC. So you have to choose your subjects next year? Yeah. What are you planning? We're probably leaving LFS. I'm in LFS. So we're planning to leave LFS because the studies are really vast. And that actually adds up to the stress and all. Okay. And every time I have my maths exam, I always get a fever before it. Oh, So okay. So you're planning to shift your school CBSE. Shifting to CBSE. CBSE is well organized when Yes, we are planning, not finally yeah, decided. it's not a final decision. So CBSE, you will have which subject, what kind of studies, which school? We don't have to have any subject from 9th. Later on then. Yeah, in 11th. CBSE, they don't have any dropping facility. No? So I'm on medication. I've completed a course of only. So tell me, how can I help you? Actually, she's on medication for that ovarian. You want her to speak? Okay. So I have like a cyst in my ovary. So I'm on You know on what is medication. ovary? Yeah, of course. Okay. So I'm on medication. I've completed a course of only 10 days antibiotic course. 10 days. I've completed a course of 10 days of antibiotics. Antibiotics? And now I'm doing Because a that is on this. because like what is that? The cyst was containing blood and pus. So for pus, she gave antibiotic. So she has an endometriotic cyst. I was just going through her reports while they were explaining to me. So she's just come in 8th standard and her problem actually started some time back, like 2-3 months before only.
and she used to have terrible pains and all. So they did not get it diagnosed earlier. तो ये जब डायग्नोसिस हो गया, एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद में ये लोग आए हैं. जस्ट लिसन टू देम. It's a big one, so and now I'm on a 21 days course. So she's saying the cyst is a big one. After that, repeat sonography. And if the size doesn't get reduced, she is advised surgery. Mostly we don't want to go. Manisha advised me to consult you. Yeah, of course, it's not the age for any surgery. Yeah, I know. And anyways, for this problem, homeopathy really works well at any age. Okay. So surgery is not. Huh. Yeah, I know. And anyways, for this problem, homeopathy really works. Very late. I was getting periods after like 1 month. They were very irregular, and they stayed irregular for 1 year. And now they won't even come up. Like they come at alternative months. I didn't get them on September, but I got them on October. So the periods used to be irregular and then alternate month हो रहा था, और इसको भी समझ नहीं आ रहा था कि कब आने वाला है. And then like all of that. And since when you are getting irregular menses? Since inception. Since the first time I got them. When did you get first time? June 24, 2019. Last year. 23rd June. Yeah, 23rd. Initially, she was getting within 18 Since days. then only they are irregular. Yeah, and they haven't stopped. 18 earlier days. 18 दिन में हो रहा था, फिर second period से उसको heavy bleed भी हो रहा था. So And it has stayed heavy bleeding till this day, but now the recent period I got, I didn't even have a little flow. So last January I consulted one homeopath in Borivali. So उनके medicine से उसका थोड़ा regularize हो गया था. But again then now it started delay. Earlier it was coming 18 days. फिर हो गया 1.5 महीना होने लगा. And she has having cramps. उसको pain बहुत Very, होता है. like, they're not bearable. So he So similar case I'll be showing in RM7 also, where the pain is excessive, too much of pain. advised sonography. तो sonography करके फिर gynec को दिखाया. तो मैंने फिर उसको पूछा कि कुछ है क्या, व्हाट इज अफेक्टिंग यू, व्हाई यू आर सो डिस्टर्ब्ड. तो आई थॉट कि ठीक है, चल मम्मी को बाहर भेजती हूँ, शी विल गेट कंफर्टेबल. देन आफ्टर the recording is only for her. Then afterwards I called her mother inside. Then I came to know that she's an IVF child. Because if you see the mother, because अभी सब कुछ एकदम clear ही दिख रहा है वीडियो में, the mother is older in age and she's the only child. So then based on that age gap I asked the mother अकेले में कि इतना टाइम बाद हुई है, बहुत लेट शादी हुआ क्या आपका. तो बोला नहीं, शादी जल्दी हो गया था, बट वी डिड नॉट कंसीव ओनली. So we kept on trying treatments. So after a long gap, she was born with IVF. So you see, the hormones and everything has played a role in setting the puberty or the hormone cycle of the daughter. So all this in detail we will do in RM7. I don't know, no idea. Any problems in life? No. No problem तो no problem. कुछ भी नहीं होता फिर. मतलब ऐसे सिलेक्टिव कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस कभी कभी स्टडीज का कुछ ज़्यादा ही टेंशन आ जाता है. क्या टेंशन होता है? कि लाइक दिस इज गेटिंग टू हार्ड, कुछ ज़्यादा ही पोर्शन है, नहीं हो पाएगा, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं. वैसे ही. और फिर यही नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं तो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाती हूँ. बट एग्जाम के दिन बहुत प्रेशर पड़ जाता है, बट हो जाता है. बट फिर भी मतलब हेडेक आ जाता है होने के बाद. Pressure. You see how she's talking, the way she's putting herself.
प्रेशर क्या है एग्जाम्स का? पता नहीं, वो अपने आप आ जाता है, मैं सोचती भी नहीं हूँ ज़्यादा, हम्म बट टेंशन आ जाता है, मतलब एक नर्वस, मतलब डर लगता है एग्जाम के बाद। कोई तुमको क्वेश्चन करने वाला है कि अरे गौरी इतने मार्क्स क्यों आए, व्हाट इज दिस, यू आर नॉट स्टडिंग? डैड, डैड इज टू स्ट्रिक्ट विद यू? नो ही इज नॉट स्ट्रिक्ट, जस्ट Then- मार्क्स अगर बुरे आए तो ऑब्वियसली बोलेंगे ही ना। तो तुम्हारे बुरे आए हैं? मतलब आए हैं, बीच बीच में आए हैं, हम्म but like he has understood, he is not like this is very bad blah blah blah. He's like he has understood and he just said that try harder next time. He was not that pressurized. तो तुम क्यों प्रेशर लेती हो? पहले से ही सोच लेती हो कि अरे बहुत डिफिकल्ट होगा, मैं कैसे कोप अप करूंगी, दैट एंजाइटी बिल्ड्स अप? Yeah, मतलब मैं एग्जाम जब लॉकडाउन नहीं था, मतलब कोरोना वगैरह नहीं था सिचुएशन, तब भी मैं मतलब इन्विजिलेटर, मेरे को बोलना पड़ता था इन्विजिलेटर को मुझे कि बुक रख दो, अभी स्टार्ट होने वाला है, लाइक हर एक पेज में वापस रिवाइज कर लेती हूँ मतलब। और नहीं किया होगा, कोई पेज छूट जाएगा तो ये तो मुझे और टेंशन आ जाता है, भाई ये पेज करना भूल गई। आई मिस्ड आउट। मैं एक्चुअली आई हैव माई टैलेंट इन सिंगिंग एक्चुअली, बट फिर ऐसा होता है कि सिंगिंग से आगे बढ़ नहीं सकते, मतलब एक स्टेबल रहना है ना, मतलब बस टैलेंट के हिसाब से तो अच्छे से बढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए आई वाज लाइक आई आस्क्ड मॉम एंड डैड व्हाट आई व्हाट फील्ड आई शुड गो इन, तो मतलब उसके हिसाब से। इसी उसको सिंगिंग पसंद है, उसका टैलेंट भी है, फिर भी वो मम्मी पापा को पूछ रही है कि क्योंकि लाइफ में स्टेबल रहना होता है। व्हाट डिड दे से? दे सेड दैट अगर सिंगिंग अच्छी लगती है तो लाइक वी विल हैव क्लासेस वगैरह वगैरह, बट क्लासेस करके मतलब इतना ही ज्यादा कंपटीशन तो होती ही है, बट बोलो मम्मी पापा बोल रहे हैं तेरी क्लासेस करा दे, तुझे सिंगिंग में इतना इंटरेस्ट है, लेकिन खुद क्या रीजन आउट कर रही है कि उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। जनरली उल्टा होता है कि बच्चे को कुछ करना होता है और पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं कंपटीशन ज्यादा है, पहले पढ़ाई पे ध्यान दे। ये क्या कर रही है ये देखो। लाइक इट्स नेपोटिज्म राइट, मतलब जो बड़े फैमिली से वही आएंगे, इट्स ऑल नेपोटिज्म। सो ट्राई करके अगर हुआ नहीं तो एंड में जब मेरा एज निकल जाएगी तो मैं क्या करूंगी। So this girl has understood what is nepotism. तो वैसे वेरी गुड। वरना मम्मी पापा को बच्चों को समझाना पड़ता है, तुम खुद ही समझ गई। वेरी नाइस। So you love to sing, so Yeah. that you will maintain as your hobby. या हॉबी, कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं तो समथिंग टू फॉल बैक ऑन। या कभी लॉकडाउन लगा तो गाने गा लेंगे, है ना? या गुड। Well, that's fine. So you think your talent lies there? तो और हीट अप कर देती हूँ ऑर्गेनाइज, मतलब मैं कभी बोलना बंद ही नहीं करती। हाँ, and you love to talk also. या I'm talking about asking about her friend circle, her other relations, etc. You can make friends easily. You can get along well with people. मतलब सोशलाइजिंग में आई हैव नेवर लाइक लुक बैक और समथिंग। Okay. तुमसे कोई नाराज नहीं होता है? तो यहाँ तक रेमेडी मेरे को समझ आ गई, तो मैं अभी ना पूरा सीटी कर रही हूँ। चैट बॉक्स खुला है क्या? चैट बॉक्स enabled है? So while listening to the CT questions, you can, in the meanwhile, put Yeah, up your remedies. chat box is open. Yeah. मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है? How do I see chats? Uh, हाँ it should be there down हाँ, below. in my chat box there are no chats. 8 minutes. I'll just. Are people putting up? Enabled है? 1 minute. I'll just cross check. हाँ
ठीक है, आप तब तक सीटी क्वेश्चन सुनिए, बिकॉज शॉर्ट लेक्चर लेना है, बहुत लंबा नहीं लेना है। कम टू द रेमेडी डायरेक्टली, लिसन टू द सीटी एंड पोस्ट योर रेमेडी। बात ऐसे करोगी कि लोग पटे ही रहें, है ना? या मतलब People will not get angry by your arguments. नो They like it when you put your point ahead. Huh? Because my best friends are always like complimenting me on this thing. Like हम हाँ. जो भी बोले तो उसका कुछ आंसर देगी तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम तो बोलती है. हाँ. And they're like last week I was discussing with them what I should pursue, and even they help me in sometimes. How many friends you have? Well, I have like many friends, but best friends category में I have 7. But 4 of them actually shifted now. मतलब कॉलोनी में मेरे 4 थे सोसाइटी में, बट वो चारों मतलब दो लोग चले गए, और ये थर्ड वाली भी आई मीन एक वीक में जाएगी. अच्छा. Anything, anytime that has hurt you a lot, made you very emotional, made you fearful? मतलब I have had many accidents, many concussions. मतलब when I fell on the face and it had an impact on my head and I had a very bad headache. Like and my nose was like पूरा rupture हो चुका था, concussion हुआ था, 2 बार हो चुका है. So मतलब तब से वही मुझे सपनों में आता रहता है, like suppose PTSD, like that. कब से हुआ मतलब है? वो मैं तो ये प्रॉब्लम 1 साल से चल रही है? नहीं In मुझे last- 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, कंकशन हुआ था, लेकिन उसके बाद अभी 2 महीनों से हो रहा है. तो टीचर्स पे गुस्सा बनी रहती है तुम लोग? गुस्सा नहीं, इट्स लाइक जस्ट इट्स नॉट फेयर ना. हम बोल भी क्या सकते हैं. बॉयफ्रेंड्स? नॉट इनटू इट? नो नॉट नाउ. वो भी तो मना क्लियर है. हाँ, वो तो जब पेरेंट्स भी नहीं सपोर्ट करते और मेरी भी वैसी मेंटालिटी नहीं है. सो स्कूल में कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया? किया है, Building, लोगों ने school. किया है. हाँ. बहुत मतलब एक लड़का है, वो कब से पीछे पड़ा हुआ अभी भी है, लेकिन वो अच्छा है, बुरा नहीं है, जेनरस है, लेकिन मैं नहीं मानूंगी ना ऑब्वियसली. क्यों? कितना ऑब्वियस है वो चीजों को लेके ना. मतलब पापा तो ऑब्वियसली पापा मुझे मना करते हैं, तो तब से मेरा भी ऐसा ही माइंडसेट है. मतलब ऐसे इंडियन सोसाइटी में सिखाया ही गया है ना कि आफ्टर दिस एज यू आर गोइंग टू डू दैट. सो ठीक है. तुमने लड़के को बोला मेरे पापा ने मना किया? तो वो देखो, लड़की शॉर्ट्स पहन के है, लड़की बोलने में बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल है, लेकिन शी इज बैलेंसिंग. इंडियन सोसाइटी में मना किया गया है, मम्मी पापा को पसंद नहीं है, उनने एज लिमिट सबकी सेट है कि अभी रिलेशन नहीं रखना. इट इज ऑब्वियस फॉर हर. मेरे पापा आके तेरे को मारेंगे, मेरी को नहीं. तो उसने लड़के को ही बोल दिया कि मेरे पापा आके तेरे को मारेंगे, तो तू मेरे पीछे ही मत पड़. And dad is always getting suspicious that I have a boyfriend. हाँ. Mummy, papa, constantly. तो द थिंग इज दैट शी स्टेज अलोन एट होम. मम्मी पापा दोनों वर्किंग रहते हैं और ये अकेला अपना सब संभाल लेती है. स्कूल से आती है, पढ़ाई करती है, फ्रेंड्स के साथ जाती है, जो भी करना है करती है. सोचो, उसके घर में कोई भी नहीं है उसको ऑब्जर्व करने के लिए कि वो क्या कर रही है. तो ये क्या बोल रही है, मम्मी पापा आर ऑलवेज सस्पिशियस दैट आई हैव अ बॉयफ्रेंड करके. लेकिन ये बोल रही है कि आई नो व्हाट आई हैव टू डू. इट इज ऑब्वियस दैट अगर उनको परमिसिबल नहीं है तो आई विल नॉट गो फॉर एनी रिलेशन. Don't even believe me if I say I don't. और यहाँ तुम ऐसे ही यहाँ तो मना कर रही है, इससे वही- अच्छा ही कर देती. तो वो बोल रहे कि अरे कुछ है ही नहीं, तो भी मेरे को डाउट से देखते रहते हैं, है ना. सो बस हो गया है केस. मैं ना फॉलो अप शेयर कर लेती हूँ क्विकली.
लास्ट फॉलोअप ही शेयर करती हूँ, क्योंकि बीच के जो फॉलोअप्स है उसमें उसका पेन कम हुआ था, फिर धीरे धीरे उसका सब साइकिल नॉर्मल हो गया, ब्लीडिंग वगैरह सब कुछ। Tell me, how are you doing? Actually, I'm doing great. Very nice. Like we मतलब लास्ट जब मेरा पीरियड था Hmm. तब लाइक उसके फोर्थ डे पे हमने सोनोग्राफी की थी. The cyst has completely dissolved. Wow. Yeah. Very nice. You did not send me the report. Actually, I didn't know where the report was, like where it was, and my mom didn't even tell me. तो उसका सिस्ट पूरा डिसॉल्व हो गया फोर्थ डे पे, उसने जाके वो किया था, यूएसजी किया था, तो सिस्ट डिसॉल्व कंप्लीटली। बीच का भी अगर फॉलोअप देखना है तो जस्ट सी वंस उसका कैसे पेन कम हुआ, ब्लीडिंग कंट्रोल में आ गया, जो हैवी ब्लीडिंग हो रहा था, और रेगुलर साइकिल हुआ Tell me, उसका। how are you, Gauri? I'm fine. Fine. Better? Yeah. Very good. So वो पेन वेन तो नहीं हुआ ज़्यादा? What is the difference like with the medicines and earlier मतलब comparatively? पेन हुआ, but Hmm. like not as much as I had before. Hmm. मतलब I had mentioned like मतलब पहले भी बताया था कि like पहले हुआ था पेन, इस बार भी पेन हुआ, लेकिन इतना अनबेरेबल नहीं था, मतलब जितना अनबेरेबल लास्ट टाइम था. Hmm. Okay. दिस इज आफ्टर 2 months ऑफ द मेडिसिन, कि फर्स्ट साइकिल में पेन हुआ, सेकेंड साइकिल में और कम हुआ, थर्ड साइकिल में फिर वो सिस्ट डिसॉल्व ही हो गया उसका। सो दैट इज द केस, बिकॉज इट इज नॉट नो चैट इज नॉट गेटिंग एनेबल्ड। तो आप लोग बोलिए, आप इनको अनम्यूट कर दीजिए पार्टिसिपेंट्स को, सो दैट दे कैन स्पीक एंड टेल। अनम्यूट करेंगे? Yes, just a minute. फटाफट फटाफट। ओके, डॉक्टर जस्ट शीला, हाँ, डॉक्टर साहिल, डॉक्टर Trupti, you can Ma'am, good morning. yes, good morning. Yeah, hello. Um, Good morning. यस Can गुड I मॉर्निंग। speak? हाँ Dr. बोलिए um, बोलिए। Yeah, Dr. Trupti here. So yeah, this child looked very, intelligent the way she was answering, and she had a good balance of her mind. Um, so I have taken only two rubrics, basically, precocity of children and anxiety from anticipation. So I'm getting medicines like Medeorinum, Natrium, Lycopodium, Lycinum, Cilicia, AMNM, Carcinosin. But I will come to Cilicia because she also appears to be intelligent. So, uh, ओके, नेक्स्ट। मैम यस यस, नेक्स्ट। मैम साहिल मैम, मुझे भी प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन तो हाँ लग ही साहिल रहा है बोलो। इसमें। इसमें प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन तो लग ही रहा है, प्लस साथ साथ मुझे ना इसकी क्लैरिटी ऑफ माइंड, रीजनिंग की पावर और हम्म इसका एक वे ऑफ टॉक, एक एक्सट्रोवर्टेडनेस, एक मैग्नेटिज्म को देखते हुए एक इंटेलिजेंट लड़की जिसका हम्म एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट टुवर्ड्स द लाइफ है। तो हम्म मैं फॉस्फोरस की तरफ हूँ। ओके ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट। नेक्स्ट। डॉक्टर शिवेंद्र, डॉक्टर राना, या गुड मॉर्निंग मैम। या गुड मॉर्निंग। अन्ना हियर। हाँ हाँ। मुझे कार्सिनोसिन का फील आ रहा है। बच्ची को बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंड है, प्रिकॉसिटी तो दिख ही रही है। 8th में है, मतलब 13 साल की है, लेकिन बातें कैसी कर रही है और हम्म बहुत ही फ्रेंडली लग रही है। और हम्म उसे देख के ये फील आ रहा है कि बच्चा बहुत अच्छा है। और yes, जैसे आपने बोला कि आईवीएफ बेबी है, सिंगल चाइल्ड है, तो घर में नेचुरली पेम्पर्ड हुई होगी, हम्म लेकिन फिर भी वो कहीं भी उसका बिहेवियर में ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो जो पेम्पर्ड चाइल्ड में दिखता है ऐसा। तो हम्म बेसिकली प्रिकॉसिटी और ये जो स्वीट चाइल्ड है, हम्म इंटेलिजेंट है,
और किस तरीके से बैलेंस करके बात कर रही है, तो मुझे कार्सिनेशन का फील आ रहा है। ओके, डोमिनेशन ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन पापा फिर भी डाउट करते हैं, ये फील आ रहा है उनको। ठीक है, नेक्स्ट। Even hi, this is Dr. Beena. हाँ हाँ, Even I'm with carcinosin and DD ignatia. ओके ओके फाइन, ओके नेक्स्ट। दो लोग और बोलिए, फिर हम लोग डिस्क्लोज करते हैं। डॉक्टर हेलो मैम। शिवानी। हाँ बोलिए। हेलो मैम, सरिता, डॉक्टर सरिता या हाँ मैम, मुझे ये बहुत एक आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, हेलो, आवाज नहीं आ, हाँ आवाज नहीं आया। हियर मी? हाँ, कैन यू हियर मी मैम? यस। हाँ, ये मुझे बहुत आइडियलिस्टिक बच्ची लगी कि हर तरह से वो पहले ही सोच लेती है ये करने से सही है, ये गलत है। हाँ, तो वो जो सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशंस है कि ये हमारे सोसाइटी में ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, राइट। तो वो उसका पूरा माइंडसेट बना हुआ है क्या सही है और क्या हाँ गलत हाँ है। हाँ, तो वो उस हिसाब से एक आइडियल बच्चा बन के चलना चाहती है। एंड प्रिकॉसिटी तो है ही, प्लस शी इज वेरी सेंसिटिव इन ओवरऑल। किसी से कुछ क्रिटिसिज्म नहीं है, उससे पहले ही वो बहुत कॉशियस होके चल रही है। सो आई एम कमिंग टू इग्नेशिया डीडी कार्सिनोसा। ओके ठीक है, चलो डिस्क्लोज कर दें अभी, क्योंकि चैट बॉक्स ना खुला नहीं है और किसी को कुछ डिफरेंट बताना है तो। मैम, डॉक्टर हाँ, पूर्णिमा हियर, आई वाज थिंकिंग ऑफ काली सिलिकम, ओके क्योंकि उसको फियर ऑफ फेलियर है और एक आइडियल इमेज बनना चाहती है कि पापा इतना डांट भी नहीं रहे, फिर भी उसको अच्छे ही मार्क्स लाने हैं। एंड शी वांट स्टेबिलिटी, उसको थोड़ा सा वो एंजाइटी भी है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर ठीक है पाऊंगी, ठीक और है वो बॉयफ्रेंड को वगैरह भी जो ठीक है, चलो we'll disclose now because ना I have to go somewhere, तो my daughter is on my head। तो मैं पीपीटी खोलती हूँ। ये पीपीटी आप लोग ने सबने पहले भी देखा हुआ है। इट इज अ रिपीटिशन एक्चुअली, बट फॉर अ डिफरेंट केस। सो उसको थोड़ा सा वापस से हम लोग समझेंगे, सो दैट हम लोग इसको और अच्छे से अप्लाई कर सके ऑन डे टू डे बेसिस। तो ये बॉन्ड बहुत अच्छा है, जो पहले केसेस दिखाए थे, और इसके पॉइंट्स बहुत सिमिलर हैं कि इसका बॉन्ड बहुत अच्छा है अपने पेरेंट्स के साथ में। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, किसी को प्रॉब्लम नहीं देना चाहते। उनका सोशल स्किल्स बहुत अच्छा है। दे हैव शी हैज 7 बेस्ट फ्रेंड्स, तो 7 बेस्ट फ्रेंड्स इज अ बिग ग्रुप, राइट। एंड हाईली कोऑपरेटिव है। टीचर को लेके भी प्रॉब्लम है तो भी टीचर को ऑफेंड करके कुछ नहीं बोल रही। शी नोज हाउ टू टॉक टू पीपल, ओके, एंड देन पुट अप अ पॉइंट। दिस इज ट्रोफैंथिस हिस्पिडस। तो इसके बारे में ये पीपीटी पूरा फेसबुक पे भी अवेलेबल है, क्योंकि रावसर डे के दिन ये लिया गया था। वो टाइम पे 2020 में लॉकडाउन के टाइम का ही ये प्रेजेंटेशन है। तो इसके बारे में आप वहां से फिर से, और मेरे बुक में भी है इसके ये सारे डिटेल्स। तो अगर देखें तो ये अल्कोहलिज्म छुड़ाने के लिए दिया जाता है। तो अल्कोहलिज्म छुड़ाने के लिए मतलब कोई भी बुरी आदत को छुड़ाने के लिए, राइट। तो इसमें वो कोई बुरी आदत ही नहीं लगाएगा। वो अगर लगाएगा, अगर ये अल्कोहलिज्म का जो हैबिट लग रहा है ना इंसान को, ये भी किस वजह से लग रहा है, बिकॉज वो अपने फीलिंग्स को पूरी तरह से एग्जिबिट नहीं करता है। ये सोचता है कि इंडियन सोसाइटी, ये सोचेगा पेरेंट्स के फीलिंग्स, ये सोचेगा सब कुछ। तो जो लड़का उसके पीछे पड़ा है वो भी बड़ा जेनरस है, उसको भी वो हर्ट नहीं कर रही, किसी को भी हर्ट नहीं करते हैं ये लोग। अपने ही फीलिंग्स को ये लोग बैलेंस आउट करने का ट्राई करते हैं। तो ये इसके ब्लैकवुड ने कुछ पॉइंट्स दिए थे कैसे लोग दिखते हैं ये। और ये सारे मटीरिया मेडिका में से बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आजकल के बच्चे बहुत, हम लोग बोल रहे हैं ना, समझदार है, बहुत ज्यादा मेच्योर है। सबने बोला प्रिकॉसिटी है, लेकिन ये प्रिकॉसिटी को थोड़ा सा एक अलग लेवल पे ये रेमेडी में देखने मिलेगा। तो इसमें ना जेलिसी है, इसमें मॉरल्स का भी हम पकड़ के इग्नेशिया की तरफ जाएंगे, लेकिन इग्नेशिया में भी कहीं ना कहीं एक ना गुस्सा रहता है। श्रीकिंग करती है इग्नेशिया भी, ये श्रीक भी नहीं करती है। ये इतने ज्यादा अकोमोडेटिव होते हैं ना, नोबडी विल एवर गेट हर्ट बाय देम, बाय देयर वर्ड्स और बाय देयर बिहेवियर। इतना ज्यादा अकोमोडेटिव बच्चे हैं ये लोग, बिकॉज सिंगल चाइल्ड है ये। तो सिंगल चाइल्ड का भी आजकल बहुत ज्यादा है कि यू आर सीइंग सिंगल चिल्ड्रन एवरीवेयर। पर
वो सिंगल होने के साथ में उनके ऊपर कितना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है सबका ना, तो वो सारे एक्सपेक्टेशंस को कैसे फुलफिल करते हैं, हर एक की बात को कैसे समझते हैं कि जो भी है हम ही है अपने पेरेंट्स के लिए। तो इनका इसका ना एक बहुत अच्छा रूब्रिक लगा मुझे कि डेल्यूजन अंड्यूलेटिंग इन हेड एंड बॉडी एंड होल। तो ये जो है ना अंड्यूलेटिंग मूवमेंट क्या है, अप एंड डाउन मूवमेंट क्या है, लाइक अ मोशन ऑफ वेव्स। ये जो हम देख रहे हैं ना पिक्चर्स, तो अंड्यूलेशन अगर इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन करके देखें तो यू सी हाउ स्मूथली दे आर डूइंग दिस मोशन, कि कहीं कोई भी हर्ट नहीं होता है इनके किसी भी टाइप के बिहेवियर से। तो ये इसमें ना मॉरल्स भी आ जाता है, इसमें यील्डिंग भी आ जाता है, इसमें प्रिकॉसिटी भी आ जाता है। और ये जो मोशन है इट इज वेरी स्विफ्ट एंड वेरी वेरी जेंटल। सो टू मूव अ वेराइटी ऑफ सॉइल सरफेस, कैसा भी सॉइल सरफेस होने दो, कैसे भी प्रकार के लोग होने दो, लेकिन ये सबके साथ में बहुत आराम से अपने आप को एडजस्ट करते हुए जाते हैं। सो वेदर इट इज हिल्स, वेदर इट इज मडी ग्राउंड, कैसा भी होगा, ये स्मूथ वाटर कनेक्शन अभी यहाँ पे वेव्स में दिया है, फॉर्मिंग अ स्मूथ वाटर कनेक्शन एंटायर वाटर बेल्ट। इतनी बड़ी बेल्ट है, तो वो हर जगह अपने आप को बहुत इजीली एडजस्ट करने वाले लोग होंगे। तो ये यहाँ लोक्वेसिटी, चिल्ड्रन इन प्रिकॉशियसली लोक्वेशियस। तो लोक्वेशियस को हम कैसे समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा बोलेगा, तो वो उसने बोला भी, मैं फ्रेंड सर्कल में होती मैं बहुत अनस्टॉपेबल, आई टॉक सो मच। तो लेकिन मेरे सामने है तो वो कैसे बात कर रही है, प्रिकॉशियसली। एंड लोक्वेशियस का और एक एस्पेक्ट है वेयर यू आर एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ आर्टिकुलेटली, फ्लुएंटली। हाँ, तो वो फ्लुएंसी है इसका स्पीच, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो वो ऑब्वियसली ना इट इज नॉट हैविंग एनी इफ्स एंड बट्स। जैसे हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज कर लेते हैं, एक्चुअली एक्चुअली बहुत बार बोलता है कोई, कोई बोलता है लिटरली, लिटरली मीन्स दोज वर्ड्स आर हैविंग नो मीनिंग इन द सेंटेंस, बट स्टिल हम लोग कैसे यूज करके अपने आप को थोड़ा सा शो ऑफ करते हैं कि वी नो गुड इंग्लिश। लेकिन इसका ऐसा नहीं था, उसके जो सेंटेंसेस है एकदम स्विफ्टली बाहर आ रहे हैं विदाउट एक्स्ट्रा वर्ड्स इन यूसेज। शी हैज स्पोकन इन इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम, बट शी हैज नॉट यूज्ड एनी एक्स्ट्रा वर्ड टू हाईलाइट समथिंग अबाउट हर सेल्फ। तो उनका प्रेजेंटेशन बहुत स्विफ्ट रहेगा, where you will feel very friendly also, you will not get offended also. This is how she talks to everyone. तो ये इसका मेन क्रक्स था ये केस का। सो तो ये प्रिकॉशंस का मीनिंग तो आप सबको मालूम है, आप सबने इसको अप्लाई भी कर लिया इसमें। तो ये अल्कोहलिज्म कब आ रहा है ना, जिस कोई भी बुरी आदत को निकालने के लिए, तो ये हर जगह दिया गया है, स्ट्रोफैंथस हिस्पिडस टू रिमूव द हैबिट ऑफ अल्कोहलिज्म। मतलब किसी को कोई अगर बुरी आदत लग गई, आप उसको निकालने के लिए स्ट्रोफैंथस दीजिए। तो इन लोगों में ना वो बुरी आदत लगना इज वाई, बिकॉज कहीं ना कहीं ये देखो, स्टेज 1 दिया है फ्लेक्सिबल एंड मेच्योर, स्टेज 2 है हैप्पी एंड गोइंग विद द फ्लो, एंड देन अनबर्डन्स oneself ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम। तो वो जाके अल्कोहल ले लेता है कि ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू फील लाइटर। तो कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को संभालने के लिए अल्कोहलिज्म का आदत लगा लेता है। सो दिस इज हाउ, एंड ग्रेटिट्यूड टू माय एंटायर एचएचएफ टीम। तो सडनली इतना डिसाइड किया एंड पूरी टेक टीम रेडी हो गई। डॉक्टर गिजरे को सुबह ही बताया गया कि यू हैव टू डू इट, एंड डॉक्टर नीलम and everyone over here and all the participants to be there on Sunday morning. Gratitude to my master, Dr. Milindra Rao sir. Thank you so much, and that's it. Yeah. Over to you, Dr. You, Krish. Kya hai? yes, he is joining. But thank you, Dr. Pallavi Chaturvedi. It was a wonderful learning, a short, sweet, Thank you. crisp, but what minor details that she has explained. I think each and every attendee is now really shaken up in the morning. So be alert for our further sessions. Yes. So for those who have joined till Dr. KY joins us, हाँ, Dr. Krish आ गए। आ गए ना? Yes. हाँ. Okay. So all the best for your Parbhani lectures. Bye. Yes, start किया है। हाँ. Yeah, so I'll be joining after an hour or so. चलो, great. Yes. Well done, Pallavi. अभी Thank you, sir. स्कूल हाँ.
हाँ अभी क्लासेस उसका शी इज कम इन 10th मेरे को इतना एक्साइटमेंट हो रहा है चलो बाय Okay, over to you, Dr. Neelam. Good morning, everybody. I think it's a great Sunday. Good morning, sir. morning. Now, our next speaker is Dr. Krishna Kumar Dinde, sir. And I think it was a wonderful session, a short, crisp session by Dr. Pallavi. And this is how what we are trying all HHFians, all our mentors to show that how even a short case आप कम से कम इंफॉर्मेशन में भी कैसे ज्यादा से ज्यादा वो आपके रेमेडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो एंड यू गेट वंडरफुल रिजल्ट. This is what all about the HHF we all are trying to teach or try to share, in fact, not to teach but share. And our next speaker is Dr. KY sir. We call him KY sir, a most dedicated person of our HHF. Right now, he is conducting his session at Parbali, and from that he's took out time and he's sharing his view related to Aramba. He is our pillar of HHF, and he has written books. Everybody knows how dedicated, and he is our research work, research oriented, and he always promotes how homeopathy can be related through research, so that more people learn and believe in homeopathy. So over to you, KY sir. We welcome you. Thank you, Neelam. Thank you so much for a sweet introduction. And good morning, all. And this Aram, we are 4 speakers. Dr. Sarang, as you know, the professor, हम लोग HHF के प्रोफेसर उनको बुलाते हैं. डॉक्टर कह रहे कुछ भी बोलता है. अरे तो क्या, you are indeed. So no worries. Second is Dr. Milind Naik. Well, he is a senior mentor and Guruji. After Rao sir, we look. Sir, we lost your voice. Hello. Sir, And third is Dr. Pallavi. आवाज हाँ. येतो है? हाँ. हाँ आला sir, आला. Yes, yeah. Pallavi. थोड़ा सा internet is unstable, but it's okay because No I am out. problem, sir. So I am conducting basically a case of autoimmune disorder, a young guy who had HLA-B27 positive, who was appearing neat, who was trying for MBBS, but he failed a couple of times, and that resulted into this autoimmune disorder. So I'll be talking on that, and I'll be sharing about the psychodynamics of autoimmune disease, the posology, the management, remedy, analysis, evaluation तो होता ही है. But the posology and the management is very, very important. उस बच्चे का हिप है ना, वो टिल्ट हो गया था, तो उसको चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही थी. And after a year, he was awarded as the performer of the year in his college. Just a minute, I'll have to take the call. Give me a minute. Fantastic. What a tremendous improvement. Yes. So now I think everybody is again more eager to learn. First, we just studied about one pathology, and now moving on to a more higher pathology, very challenging cases, right? Autoimmunity is, I think, one of the most difficult pathology to handle, especially the potency. And as we know, it always has exacerbations. And again, there is a period or a plateau period. So this is management part is very, very important, right? Yes. So let's move ahead. Yes. Can I share the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Just a minute. I'm a bit occupied here.
So what I would just like to tell you is कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये देखते हैं कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा केसेस से रिलेट करें जो प्रैक्टिकली आप एक्सपीरियंस कर सकोगे. यू कैन इम्प्लीमेंट द थिंग्स इन योर ओन क्लिनिक्स and at the same time you can also understand where you have to differentiate the remedies. And when you would learn this, जो रेमेडीज जो आप सीखोगे जो एकदम लेफ्ट एंड राइट आप दे सकोगे एकदम सिंपल तरीके से हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं. वी शेयर वॉट एवर वी नो. हमारे साथ में कुछ रहता नहीं जब भी हम लोग शेयर करते हैं तभी वी शेयर कंप्लीटली फुल्ली सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड छोटी सी छोटी चीज वो रेमेडी के बारे में आप सीख सकोगे. ओके. सो हमारा एक प्लान ऐसा ही रहता है या वी नॉर्मली प्लान इन सच अ वे वेयर you find that you should be able to understand the drug, you should be able to implement the drug in your clinic. At the same time, you should be able to differentiate the drugs. ये तीनों चीजें जो है ये चीजें आप समझ सकोगे आप उसको इस्तेमाल कर सकोगे आपके क्लिनिक में. एंड दिस इज व्हाट वी ऑलवेज फोकस. ओके. ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमेशा. एंड there are some simple tips which we try to give. We never say that homeopathy वो बहुत ही difficult है या we don't put any things like those things because to understand homeopathy first we have to understand a person. So जो person बात करता है उसको लेना है. We people you would find HHF में आप देखोगे ऐसे कभी बहुत रेयरली पूछा जाता है कि बाबा बहुत गुस्सा आता है क्या कितना गुस्सा आता है इतने देर तक आता है तो कितने देर में शांत होता है कैसे होता है. नो. बिकॉज मोहंती सर या राव सर हमको हमेशा सिखाते थे वॉट एवर द पर्सन टॉक्स विथ हिज माइंड. ओके. एंड ही वुड शेयर with whatever his experience is. So when he is sharing something with you वो अपने मन से बात करता है और जब भी वो मन से बात करता है उसको एज अ ले पर्सन हमको लेना है. ओके. राव सर हमेशा बोलते थे कि फॉर अ होम्योपैथ टू बी अ वेरी गुड फिजिशियन और होम्योपैथ ही शुड बी अ ले पर्सन. यू हैव टू गो टू इनटू द पेशेंट शूज एंड देन अंडरस्टैंड द पेशेंट. तो ही हम ट्रूली अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर हो गए. ओके. ओवर टू यू केवाई. Yes, thank you Sarang for stepping in. I am at a Parbhani seminar, so उनके principal मिलने आए थे, तो he was seeing us off. So we were at everybody can see the screen, right? I guess. Yes, Pallavi? Yes, it is visible. No, it is Yeah. visible. So autoimmune Yes, sir. disease. Yes. Yeah. I am reading this from the book Knowing Ourselves by Mr. Romero. And he is a PhD person. So what he writes about autoimmune disease, the word auto comes from Greek and it means oneself. Auto is self. The immune system is a complex network of cells and cell components called molecules which normally work to defend the body and eliminate infections caused by bacteria, viruses and other invading microorganisms. Autoimmune यानी against the body, against the immune system, our own immune system acts against us. So those cells which are there to protect us, the system which is built to defend us is now attacking us. है ना. जैसे ऑटो इम्यून के सेशन में डॉक्टर शंकरन सर ने कहा था कि घर का ही वॉचमैन घर को लूट रहा है ना. तो that way, so our own system is acting against us. In a person with an autoimmune disease, the immune system loses control, does not recognize its own cells and begins to attack them and destroy them as if they were strange and dangerous agent. तो क्या होता है ना, आइडेंटिफाइंग का इशू होता है कि जो डिफेंस सिस्टम को अपने को प्रोटेक्ट करने का मैसेजेस है या इनबिल्ट सिस्टम होता है, दैट सिस्टम लूजेस द कंट्रोल एंड दे स्टार्ट अटैकिंग the own body which they should have been protecting.
तो ये क्या होता है ना, द डिजीज शोज आवर इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, टू सी अस और एक्सेप्ट अस एज वी आर। तो ये कहाँ से आता है ना, माइंड से। सिस्टम गलत कब होता है ना, क्योंकि उसको सीएनएस से मैसेजेस जाते हैं। अपना ही सिस्टम अपने को क्यों डिस्ट्रॉय करेगा? व्हाई आवर सेल्स विल अटैक अस एंड डिस्ट्रॉय। और जब ऐसा होता है ना, जब अपने ही सेल्स अपने खिलाफ एक्ट करते हैं, उसको क्या मेडिसिन दोगे? क्या मॉडर्न मेडिसिन हेल्प करेगा? इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देंगे वो, बराबर है, उनको रोकने की कोशिश करेंगे। बट मैसेजेस जो जा रहे हैं उनको, मैसेजेस नहीं रुकता है। इसीलिए ऑटो इम्यून डिजीजेस आर इनक्यूरेबल, दे आर ओनली मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मॉडर्न मेडिसिन। उनको क्या करते हैं ना, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स को इम्यूनिटी सप्रेस करते हैं। द इम्यूनिटी विच इज एक्टिंग अगेंस्ट, दे आर ट्राइंग टू सप्रेस दैट। बट जो सीएनएस से मैसेजेस जा रहे हैं ना, वो मैसेजेस नहीं स्टॉप कर सकते। वो मैसेजेस सिर्फ होम्योपैथी स्टॉप कर सकती है, बाय चेंजिंग द थॉट प्रोसेस। और ये थॉट प्रोसेस गलत होता है ना, तभी तो नेगेटिव मैसेजेस जाते हैं। और ये नेगेटिव मैसेजेस अपनी सिस्टम को, अपने खिलाफ एक्शन को ये करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सो व्हाट आर दोज फीलिंग्स एंड इमोशंस विच compels our own immune system to act against us or destroy our own system? So those feelings are deep feelings of worthlessness, with coupled with feelings of guilt and helplessness. एक तो वर्थलेस फीलिंग है, उसमें गिल्ट और हेल्पलेसनेस भी है। सी, ये तीन कॉम्बिनेशन है। सिर्फ वर्थलेस होना ही काफी नहीं है, उसकी वजह से गिल्ट भी आता है, और उसकी वजह से हेल्पलेसनेस है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। सो अल्टीमेटली क्या फीलिंग आती है? आई डू नॉट डिजर्व टू एग्जिस्ट। पार्ट ऑफ मी वॉन्ट्स टू किल अनदर पार्ट ऑफ मी। विच पार्ट ऑफ मी वॉन्ट्स टू किल द विच पार्ट? द फेलियर पार्ट, द वर्थलेस पार्ट, कि मैं फेल हो गया और मैं कुछ कर नहीं पाया। ये गिल्ट है ना, ये गिल्ट को खत्म करना होता है, ये वर्थलेस पार्ट को खत्म करना होता है। इसलिए अपने सिस्टम अपने अगेंस्ट होती है। द पार्ट ऑफ मी डिसएग्रीज विद द अदर पार्ट। विच पार्ट is disagreed? The part which has failed, which couldn't rise, which couldn't suffice, which couldn't do things which he was supposed to do. So worthlessness, feelings of worthlessness, deep feelings, हाँ, थोड़ा सा नहीं, deep feelings। ऑटो इम्यून के लिए बहुत deep seated feelings लगेंगे of worthlessness, guilt and helplessness. So we move ahead, we project our difficulty in this world outside. We do not recognize ourselves. We consider and qualify to people or things as good or bad in absolute terms, without setting any nuance or any other consideration. This state of conflict and compulsive defense, which leads us to destroy ourselves, believing we destroy the world to defend ourselves, not to harm the world, of course. तो क्या होता है ना, इसमें वो जो फेलियर पार्ट है अपने अंदर का, जो अपने अंदर का गलत पार्ट है, गिल्टी पार्ट है, उसको अपन खत्म करने की कोशिश करते हैं कि यार मुझे जिंदा रहने का भी हक नहीं है, मैं इतनी सी चीज नहीं कर पाया। और वो रेक्टिफाई करने के लिए भी हेल्पलेस है, तो दे वांट टू एंड दैट पार्ट। ओके, इसलिए फिर ये अपनी सिस्टम अपने को डिस्ट्रॉय करने। तो ऐसी क्या क्या सिचुएशंस आती है ना लाइफ में, वही अपन डिस्कस करने वाले हैं उस केस द्वारा, उस लड़के के केस में। Okay, which we'll be discussing in details, posology, management, everything. So this is the psychodynamics of autoimmune disease, worthlessness coupled with feelings of guilt and helplessness, right? So I'll share another case of mine. Oh God, just give me a minute. So till then, anybody has any queries or any other questions, clarifications that are required? Okay. I'm there. So एक और एक केस बताना चाहता हूँ. A lady around 49 came to me with severe joints, autoimmune disorders, severe joint pains. Some of them were क्या बोलते हैं ना, आर्थ्रोपैथी है तो पेन बहुत है, और हल्का सा डिफॉर्मिटी, मतलब एल्बो सीधा नहीं हो रहा है। ओके, मॉर्निंग में उठने को नहीं हो रहा है, स्टिफनेस बहुत है, पेन्स बहुत है, स्वेलिंग्स बहुत है, कुछ नहीं कर पा रही है वो।
तो मैंने सोचा क्या हो गया। बोले सर इतनी दुखी हो गई हूं मैं, एंड शी वाज बीइंग ट्रीटेड विद होम्योपैथी बाय वेरियस होम्योपैथ्स ऑल ओवर। और ऑटो इम्यून डिजीजेस में क्या होता है ना, ठीक होते हैं वो, बट उतना पीरियड अपने साथ रहने चाहिए। उतना पीरियड है, वो अपने साथ नहीं रहेंगे ना, तो उनको ट्रीट नहीं कर सकते। तो शी वॉज विथ मी फॉर अ ईयर अराउंड, एंड शी बेनिफिटेड लाइक एनीथिंग। अभी उसमें क्या फीलिंग था ना, मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम हुआ। तो बोले सर क्या स्ट्रेस है। बोले सर घर में स्ट्रेस था थोड़ा। तो हम लोग अभी सेपरेट हो गए, पहले जॉइंट फैमिली थी, सास ससुर भाई वगैरह सब साथ में रहते थे, मतलब उसके देवर जेठानी वगैरह ऐसा सब। तो उसके बाद में कुछ 6-7 साल पहले वो लोग सेपरेट हो गए, 8-10 साल पहले। 15 साल की बेटी है, एक 12-13 साल की बेटी है, दो बेटियां हैं। हस्बैंड बिजनेस कर रहे थे, तो थोड़ा सा बिजनेस फेलियर, सेपरेट होने के बाद वो थोड़ा सा स्ट्रगल था। एंड मैं बोला क्या हो गया। एंड यू नो व्हाट, शी वाज वेरी वेरी वाइवेशियस। मैं बोला इतनी वाइवेशियस, इतनी वेल, क्या बोलते हैं ना, काम कंपोज्ड, वाइवेशियस, वेरी टॉकेटिव। आते ही ये हो गया सर मेरे को इन्होंने रेफर किया, मेरे को इन्होंने रेफर किया, ऐसे वैसी बात चली। शी यूज्ड टू कम फ्रॉम मुंबई टू थाने। तो इट वाज लाइक सब अच्छा चल रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो मैंने पूछा क्या है। तो जनरल नेचर वाज वाइवेसिटी, कम्युनिकेटिव, एंड शी लव्स ड्राइविंग, शी लव्स ट्रैवलिंग, इतना सब मैंने पूछ लिया। बट एक चीज नहीं पता चल रही थी कि ऑटो इम्यून डिजीज आने के लिए क्या रीजन है। तो आई सेड व्हाट हैपेंड, यू सीम सो हैप्पी आउटसाइड, बट सम पार्ट, जैसे अभी योवान रोमेरो ने बोला कि some part inside you is not happy with yourself, is feeling bad about you. What has made you unhappy? So she came up with an incident. She said, when I was at my in-laws home, her father-in-law touched her inappropriately. She was furious at that. She complained her to the husband. But उल्टा ऐसा हो गया कि इसी को बोला गया, इसी को बदनाम, बदनाम भी नहीं हुई, बट घर में बहुत फ्रिक्शन हो गया इस बात को लेके। एंड वो बात से फिर वो लोग सेपरेट हो गए। शी सेड आई जस्ट कैन नॉट फॉरगेट दैट मोमेंट। वो पूरा सीन मेरे आंखों के सामने आते रहता है। इन द ड्रीम्स ऑल्सो समटाइम्स आई गेट दैट फीलिंग एंड आई वेक अप। मैं बोला तब से धीरे धीरे चाहे, बोले तब से सर मैं ठीक ही नहीं हूँ। मैं उसके बाद से ये धीरे 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 चीजें बढ़ती गई। ग्रेजुअली शी बिकेम क्रिपल्ड, देयर वाज आर्थ्रोपैथी, देयर वाज रेस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट्स, देयर वाज समथिंग, है ना। तो ये चीज थी, तो मैंने बोला कि यार क्या इसको ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि बहुत वाइवेशियस, बहुत कम्युनिकेटिव पर्सनालिटी, एंग्री, प्यारी, लविंग, केयरिंग सब थी। तो ये चीज ने उसको बीमार कर दिया था। तो मैंने बोला क्या लगा सर, ऐसा हो गया ना कि मुझे गिल्ट आया कि शायद मेरे ही कुछ एक्शंस ऐसे नहीं थे ना कि ही प्रॉम्प्टेड और ये टच विच प्रॉम्प्टेड हिम टू टच मी इनएप्रोप्रिएटली, कि मेरी कुछ गलती तो नहीं है। मैं बोला ऐसा क्यों सोच रहे हो आप। बोले सर उन्होंने टच तो किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे क्यों, मेरी तरफ से कुछ गया है क्या। तो मैंने बोला यार ये नहीं सोचना चाहिए। दिस फीलिंग मेड हर फील वर्थलेस, है ना, मेड हर फील हेल्पलेस, एंड देयर वाज अ गिल्ट। सी तीनों चीजें आ गई। तो इसको क्या ले सकते हैं। एनीवन, शी डिड वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल विद दिस रेमेडी। वो जो है वो, मतलब शी इज वेरी वेरी कम्युनिकेटिव, वाइवेशियस, सब सब मजा करना, ये करना, इसकी वजह से नहीं कर पा रही। क्या रीजन हो सकता है। एक चीज ने उसकी पूरी लाइफ झंझोड़ दी, और आज भी उसको ड्रीम में वो पूरा का पूरा सीन याद आता है। वो पूरा का पूरा, वो उसके दिमाग से चीज गई नहीं है, सपने में भी आता है। सो इट हैज पियर्स्ड हर soul, pierced her subconscious mind, and that has given messages of autoimmune disease, self-destructive, कि वो पार्ट, वो सीन उसको नहीं चाहिए। That part of her, that guilt part of her, that feeling of worthlessness, and she was helpless, कि वो कुछ नहीं कर पाई अपने ही फादर इन लॉ, है ना। तो ये था।
तो विल सी। ये रूब्रिक लिया मैंने, ड्वेल्स past disagreeable occurrences on frightful scene of some mournful event of the past tormented by। so कौन सा था, कौन सा occurrence था, कौन सा सीन था, कौन सा इवेंट था जिससे वो टॉर्मेंट हो रही थी? tormented by past disagreeable occurrences, tormented by which some frightful mournful, scary है ना, it's very scary for a woman to be touched inappropriately by some father figure like father-in-law। So this rubric I considered and everything fell into place। उसके बाद आप, तो ये चीज है ना, ये एलिमेंट्स, ये कॉज ढूंढते आना चाहिए। ये वाइवेशियस, कम्युनिकेटिव, ट्रैवलिंग, ये सब पेरीफ्री है ना। तो ये क्या रूब्रिक, क्या रेमेडी है? आई गेव हर स्पॉन्जिया। ट्रैवलिंग डिजायर में भी है शायद, यस। सो आई गेव हर स्पॉन्जिया एंड शी डिड ट्रेमेंडसली। और मैं बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, बट स्पॉन्जिया ऑटो इम्यून में, आर्थ्रोपैथी में, एचएचएफ के सिवाय कोई नहीं दे पाता। दे भी सकते हैं, बट मेजॉरिटी will not prescribe spongia in arthritis or autoimmune disease because it is a remedy which is popularly prescribed in respiratory diseases। so ये सब जो barriers है ना, जो fixity है, जो एक pictures है, वो सब तोड़ने के लिए अपने को rubrics बहुत काम आते हैं। HHF is researching in that and I followed her with spongia क्योंकि ये अभी ये state है उसका। अब स्टेट क्यों बोलता हूं? ऑलवेज जो लॉन्ग टर्म डिजीजेस होती है ना, वो स्टेट्स होती हैं, क्योंकि ये एक चीज आई वो इवेंट के बाद में, है ना। ये चीज उस इवेंट के बाद आई है, इसीलिए वो ओवरलैपिंग स्टेट है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी हो। सो आई विल वेट फॉर अ डे वेयर शी स्टार्ट्स, शी फॉरगेट्स दिस मोurnful सीन, शी, द टॉर्मेंट जो है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद शी विल स्टार्ट टॉकिंग समथिंग एल्स, द कंसर्न्स विल चेंज, that subconscious, that storm in that subconscious mind, in the subconscious mind will be elevated। वो storm शांत हो जाएगा, वो सब scenes, mournful events सब निकल जाएंगे दिमाग से। ओके, सो आई प्रिस्क्राइब्ड हर स्पॉन्जिया। बहुत लंबा चला केसेस, 200 से स्टार्ट किया, फिर एलएम पोटेंसिस गया, बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आए, फिर कोविड आया, कोविड में उसके पेरेंट्स गए, दैट वाज द चेंज ऑफ स्टेट। ओके, और उसके बाद में उसको मैंने रेमेडी चेंज कर दी। तो ऐसे होगा, कोई कोई डिजीजेस में 2-3 रेमेडीज लग सकती है, बट स्टेट जाना चाहिए, कंसर्न्स चेंज होने चाहिए, या फिर देयर शुड बी सम फंडामेंटल कॉज लाइक डेथ ऑफ बोथ द पेरेंट्स इन 15 days। शी लॉस्ट हर फादर एंड मदर विद इन 15 days, एक के बाद एक, मेरे ख्याल से एक ही हफ्ते में, एंड दैट चेंज हर स्टेट। तब तक वो टॉर्मेंट, मोurnful इवेंट, सीन सब निकल गया था, and then I prescribed her another remedy। Okay, so got it guys। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में आपको आएगा, तो थोड़ा सा डीप जाना है, डीपर फीलिंग्स आपको पूछने हैं, इसीलिए थोड़ी सी सेंसिटिविटी, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी आनी चाहिए, थोड़ा सा ग्रेजुअली जाना चाहिए केस के अंदर, है ना। तो धीरे 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 ये चीजें आप सीखोगे। और मैनेजमेंट भी, मैंने एलएम पोटेंसी पे उसको काफी देर तक रखा। अगर एक्यूट पेन्स आए तो मैंने 200 इंट्रोड्यूस किया या 1M इंट्रोड्यूस किया। सो डिपेंडिंग ऑन दैट कंटिन्यूअस फॉलोअप लगते हैं। ऑटो इम्यून, नो डिजीज इज इनक्यूरेबल, बट उतने पेशेंट्स, कैंसर केसेस अभी हम दिखा रहे हैं, तो कैंसर केसेस के लिए 1.5 साल मैंने रिवर्स किया कैंसर, लेकिन 1.5 साल वो मेरे साथ पेशेंट रहा ना, विदाउट एनी कीमो, विदाउट एनी मॉडर्न मेडिसिनल इंटरवेंशन। अभी परभनी में, नागपुर में, पुणे में हम लोग में वही केस दिखा रहा हूँ, कैंसर केसेस की 300 म्यूटेशंस कैंसर के रिवर्ट करने हैं। तो आपको मैनेजमेंट बहुत 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 सोच के, पोसोलॉजी सोच के करना पड़ेगा। वैसे ही ये केस में भी स्पॉन्जिया लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट मैंने किया है, तभी तो ये केस दिखाऊंगा। लेकिन एलएम पोटेंसिस हेल्प्ड हर ग्रेटली। बीच बीच में 200 1M में इंट्रोड्यूस करता था 3 कप 5 कप मेथड से,
तो ये केस भी बच्चे की केस है और परफॉर्मर ऑफ द ईयर उसको अवार्ड मिला है। मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, वो स्टेज पे दौड़ता गया है, जो हिप का टिल्ट था वो गायब। हाँ, एलएम पोटेंसी कंटिन्यू देता था मैं, समझो 0/1 स्टार्ट किया है तो ऑल्टरनेट नाइट दिया मैंने देखा। अभी कैसा है ना, कोई भी चीज में पोसोलॉजी के लिए मैं बताऊंगा, फर्स्ट फ्यू रेस्पॉन्सेस ऑफ द पेशेंट आफ्टर द सिमिलिमम आर इम्पोर्टेंट। वो रेस्पॉन्सेस इवेलुएट करने हैं अपने को। वी शुड इवेलुएट दोज रेस्पॉन्सेस एंड देन बिल्ड अ स्ट्रेटेजी ऑन इट, है ना? क्योंकि हर एक का रेस्पॉन्स अलग होगा, हर एक का पेस ऑफ रेस्पॉन्स अलग होगा। तो इसीलिए पोटेंसी में भी इंडिविजुअलाइजेशन है, because every patient responds differently with a different pace. So accordingly, you have to build a strategy. So autoimmune diseases, cancer, depression, most of the cases, the potency will be individualized उस पेशेंट के फर्स्ट कपल ऑफ रेस्पॉन्स, उसके बाद के जो, अगर पेशेंट को फ्यू रिपीटेशंस में बहुत ज्यादा आराम आ रहा है, इसका मतलब उसको रिपीटेशंस की जरूरत ही नहीं है। 5 कप 3 कप सब समझा देंगे आपको, डोंट वरी, है ना? अभी मैं परभणी सेमिनार में हूँ, सब शेयर करते हैं, हम लोग बच्चों को बाजू में बिठा के सिखाते हैं यार, तो इतना नहीं करेंगे, है ना संदेश? सो डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग सब सिखाएंगे आपको, सिखाने के लिए बैठे हैं, शेयर करने के लिए बैठे हैं। तो ऐसे इंसाइट्स आना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये इंसाइट्स ही शेयर करने हैं और एक्सपेरिमेंट करो आप। अगर जब तक दोगे नहीं दवाई, पोटेंसी ट्राई नहीं करोगे, तब तक कोई चीज नहीं होगा। तो first few responses have to be evaluated, which will help us to build a protocol, to build a strategy for that patient। तो एक प्लान रेडी होगा। तो ऑलवेज राइट नोट्स, केस पेपर पे आप नोट्स लिखो कि ये महीने में ये मैंने प्लान किया है, आगे ये पॉसिबिलिटी मैंने लिख के रखी है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि 2-4 महीने में अपन भूल जाते हैं वो चीजें, बिकॉज वी सी मेनी पेशेंट्स। सो नोट्स में क्या करता हूँ, पेशेंट को रिव्यू जब करता हूँ ना, तो वो मैं पढ़ता हूँ नोट्स कि यार क्यों ठीक नहीं हो रहा है, क्यों गड़बड़ हो रही है, क्यों स्टैग्नेट हो रही है केस, स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट तो नहीं है। तो ये सब आप नोट्स भी लिखना, मैं वैसे करता हूँ, इट हेल्प्स। यू कैन चूज योर वे टू डू दैट। ओके, सो आई टेक अ लीव, मैं अभी आई एम ज्वाइनिंग बैक टू परभणी सेमिनार। एंड हु इज द नेक्स्ट स्पीकर? पल्लवी, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। और आरंभ में तो और मजा करेंगे, और नाइक सर का तो सरप्राइज है भाई, अब सुनो उनके मुंह से वो क्या क्या खेल खेलने वाले हैं, है ना? यस, ओवर टू यू पल्लवी। Yes, yes. Thank you Thanks so a much. lot. In spite of the busy schedule, you